السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، آج میں ٹیلی ERP9 کا پارٹ نمبر 18 لے کر حاضر ہوں، جس میں ہم جانیں گے کہ پرچیز واؤچر میں انٹری کیسے کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے ٹیلی کو کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں Alt+W، اور اس کے بعد ہم یہاں پر کی بورڈ سے دباتے ہیں S، اور اس کے بعد ہم یہاں پر محسن ظہیر کمپیوٹرز نامی کمپنی کو لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ٹیلی کی مین اسکرین کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر کی بورڈ سے دبائیں گے V، جو کہ اکاؤنٹنگ واؤچرز کی شارٹ کٹ کی ہے۔ تو اس سے دوستو واؤچر کی اسکرین کھل جاتی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے پیمنٹ کا ہی واؤچر کھلتا ہے، لیکن آج ہم جانیں گے پرچیز واؤچر میں کیسے انٹری کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی F9 دبائیں، جس سے پرچیز واؤچر کھل جاتا ہے۔ سب سے پہلے دوستو یہاں پر پرچیز کا واؤچر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ یہاں پر سپلائر انوائس نمبر، انوائس کہتے ہیں بل کو، اور پارٹی اکاؤنٹ نیم، پرچیز لیجر وغیرہ کے آپشن دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو یہاں پر ہم پرچیز واؤچر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں۔ دراصل یہاں پر پرچیز واؤچر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو بل کی طرح یعنی کہ ایز انوائس، اور ایک واؤچر کی طرح یعنی کہ ایز واؤچر۔ ایز انوائس موڈ میں اس چیز کی بھی انٹری کی جاتی ہے کہ آپ نے کون کون سے آئٹم خریدے اور کتنی کتنی مقدار میں خریدے اور ان کی قیمت کیا تھی۔ اور واؤچر موڈ میں یعنی کہ ایز واؤچر موڈ کے اندر سمپلی ڈیبٹ اور کریڈٹ کے آدھار پر انٹری کی جاتی ہے، جبکہ ایز انوائس موڈ میں آپ بغیر ڈیبٹ اور کریڈٹ کے نیموں کے مطابق بھی انٹری کر سکتے ہیں۔ دوستو فی الحال آپ کو پرچیز واؤچر انوائس موڈ میں دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ ایز انوائس موڈ میں، اور یہاں پر آپ کے سامنے نیم آف آئٹم کی کالم بھی ہے، یعنی کہ آئٹم وغیرہ کو فل کرنے کی کالم بھی ہے۔ تو آئٹم وغیرہ کی انٹری کیسے کی جاتی ہے، یعنی کہ سامان خریدنے کی انٹری کیسے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ جانیں گے۔ فی الحال ہم یہاں پر جانیں گے کہ واؤچر موڈ میں انٹری کیسے کی جاتی ہے، یعنی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے آدھار پر پرچیز کی انٹری کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر موڈ کو چینج کرنے کے لیے یہاں جائیں گے بٹن بار میں ایز واؤچر کے آپشن کے اوپر، اور یہاں پر اس کی دوستو شارٹ کٹ کی دی گئی ہے V کے نیچے ڈبل انڈر لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول V ہے۔ تو دوستو جیسے ہی میں یہاں پر کی بورڈ سے دباتا ہوں کنٹرول V، یا پھر ہم ایز واؤچر کے اوپر کلک کرتے ہیں، تو دوستو یہاں پر یہ موڈ چینج ہو جاتا ہے، اور دوبارہ ایز انوائس کرنے کے لیے آپ جائیں گے یہیں پر ورٹیکلی بٹن بار میں، اور یہاں پر کلک کریں گے ایز انوائس کے اوپر، یا پھر دوستو کنٹرول V دبائیں گے تو یہ ایز انوائس یا پھر ایز واؤچر ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ یہاں پر ایز انوائس موڈ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے آئٹم انوائس اور ایک ہے اکاؤنٹنگ انوائس۔ جیسے کہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں ورٹیکلی بٹن بار میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹنگ انوائس، اور فی الحال یہاں پر آئٹم انوائس موڈ میں کھلا ہوا ہے، چونکہ یہاں پر نیم آف آئٹم لکھا ہوا ہے۔ دوستو یہاں پر نیم آف آئٹم، آئٹم انوائس اور اکاؤنٹنگ انوائس میں فرق یہ ہے کہ آئٹم انوائس موڈ میں ہم مال وغیرہ خریدنے کی انٹری کرتے ہیں، اور اکاؤنٹنگ انوائس میں ہم سروس وغیرہ خریدنے کی انٹری کرتے ہیں۔ آئٹم انوائس یا اکاؤنٹنگ انوائس میں چینجنگ کرنے کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر اس جگہ ورٹیکلی بٹن بار میں، یہاں پر کلک کریں گے یا پھر اس کی شارٹ کٹ کی Alt+I دبائیں گے، تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چینجنگ ہو رہی ہے اکاؤنٹنگ انوائس یا آئٹم انوائس۔ آپ اس کی مشق کر کے دیکھیں۔ لیکن ناظرین آج ہم یہاں پر جانیں گے ایز واؤچر آپشن کو، یعنی کہ ایز واؤچر موڈ میں کیسے انٹری کرتے ہیں، چونکہ یہ بہت ہی بیسک ہے اور ابھی ہماری بیسک لیول چل رہی ہے۔ تو دوستو آج ہم یہاں پر اسی لیے ہم ایز واؤچر موڈ میں پرچیز کی انٹری کریں گے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ پرچیز واؤچر میں کس طرح کے انٹریز کی جاتی ہیں۔ جب بیچنے کے لیے کوئی مال خریدا جاتا ہے یا مینوفیکچرنگ یعنی کہ بنانے کے لیے کچا مال خریدا جاتا ہے، چاہے ادھار خریدا جائے یا نقد، تو اس طرح کی انٹری پرچیز واؤچر میں کی جاتی ہے۔ دوستو دھیان دیں، کاروبار میں جب بھی کوئی فکسڈ ایسٹ خریدی جاتی ہے تو اس کی انٹری پرچیز واؤچر میں نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس واؤچر کا تعلق سیدھا خرچوں سے ہوتا ہے، جبکہ ایسٹ جائیداد ہوتی ہیں۔ دوستو ہم نے یہاں پر آپ کو ایک PDF فائل دی ہے،
जिसकी लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी को देखकर आप मशक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि 1 मई 2022 को नकद माल खरीदा 2000 रुपये का। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमने माल तो ख़रीदा है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की कोई भी तफसील नहीं है कि माल क्या ख़रीदा था, कितनी मिकदार में ख़रीदा था, उसकी क्वांटिटी क्या थी या उसकी कीमत, हर एक प्रोडक्ट की कीमत क्या थी। इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी डिटेल और तफसील नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है नकद माल ख़रीदा 2000 रुपये का। बस हमें इसी की एंट्री करनी है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 खाते और अकाउंट शामिल हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर एक खाता बनेगा परचेज़ का, चूँकि हमने ख़रीदारी की है तो ख़रीदने की वजह से यहाँ पर एक खाता बनेगा परचेज़ का यानी कि परचेज़ अकाउंट, और एक खाता बनेगा पैसे का, चूँकि दोस्तों ख़रीदने की वजह से हमारा पैसा गया है तो इसीलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का यानी कि कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर परचेज़ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि खर्चों से परचेज़ हमारा खर्चा होता है और खर्चों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। और इसी तरह कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं कि कैश हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति और जायदादों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर परचेज़ अकाउंट यानी कि जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो। तो यहाँ पर हम कायदे के मुताबिक परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इसी तरह से रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा कि बाहर जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो, क्योंकि नाज़रीन ख़रीदने की वजह से हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कैश को कायदे के मुताबिक क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे, यानी कि इस जगह जहाँ पर ये 2 दिसंबर 2022 दिखा रहा है। डेट को फिल करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर या फिर इसकी शॉर्टकट की F2 दबाएंगे। तो दोस्तों मैं कीबोर्ड से दबा देता हूँ F2, तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। अब आप यहाँ पर डेट को फिल करेंगे 1 फिर डैश फिर 5 फिर 2022 फिर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 मई 2022 आ गया है। इसके बाद फिर एंटर करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर आ जाते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में, यानी कि जिससे हमने ख़रीदा है उसका बिल नंबर क्या है। दोस्तों जब भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं तो सप्लायर हमको एक बिल देता है, उस पर एक नंबर होता है। उस नंबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नंबर नहीं है तो जान लीजिए कि वो बिल ही नहीं है बल्कि वो कोई फर्जी चीज़ है। तो दोस्तों वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। मिसाल के तौर पर हम कर देते हैं 112 और फिर एंटर करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे वो तारीख जो बिल पर लिखी हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर यही तारीख रहने देते हैं, यानी कि 1 मई 2022 पहले से है, और फिर हम एंटर करते हैं और CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे कैश को, क्योंकि हमारा पैसा यानी कि कैश बाहर जा रहा है और बाहर जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कैश को, फिर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आ जाता है। आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर अपने सप्लायर की डिटेल भी फिल कर सकते हैं, यानी कि उसका एड्रेस वगैरह। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और हम यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में करेंगे इसका अमाउंट फिल। लेकिन नाज़रीन आप यहाँ पर देखें कि कैश के नीचे 27,000 DR दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल हमारे पास 27,000 कैश में है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में 2,000 रुपये एंटर किए, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2,000 रुपये कम हो गए हैं। अब यहाँ पर 25,000 DR दिखला रहा है, यानी कि हमारे पास 25,000 कैश बचा है। इसके बाद हम DR वाले खाने में आ जाते हैं और DR करेंगे हम यहाँ पर परचेज़ अकाउंट को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परचेज़ अकाउंट का लेजर बना हुआ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर परचेज़ अकाउंट का लेजर बनाना होगा। तो हम यहाँ पर DR वाले खाने में रहते हुए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+C। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्री करते वक्त अगर कोई हमारा लेजर बना हुआ नहीं होता है तो हम उसके लिए Alt+C का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से दबा देते हैं Alt+C, तो इस जगह लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। आप यहाँ पर लिखेंगे परचेज़ अकाउंट, यानी कि लेजर का नेम परचेज़ अकाउंट, और इसके बाद एंटर करेंगे और अंडर वाले खाने यानी कि ग्रुप वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों परचेज़ अकाउंट का जो ग्रुप होता है वो परचेज़ अकाउंट ही होता है, चाहे वो कैसे भी परचेज़ हो, GST वाली परचेज़ हो, बगैर GST की परचेज़ हो, आपने ख़रीदारी कहीं से भी की हो,
सभी तरह की परचेजेस का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ से ले लेते हैं परचेज अकाउंट इस तरह। इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसमें हम रहने देंगे यस, और यहाँ पर हम करेंगे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। और इसके बाद दोस्तों हम एंटर करके इस लेजर को सेव कर लेते हैं। सेव करते ही आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है जिसमें लिखा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आइटम वगैरह की एंट्री नहीं करेंगे कि हमने क्या आइटम खरीदा था, उसकी मिकदार यानी कि क्वांटिटी क्या थी और उसका रेट क्या था, इन सभी चीज़ों की एंट्री करने को टैली के अंदर इन्वेंटरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इन्वेंटरी अभी हमारे सबक में शामिल नहीं है, इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में हम आइंदा जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इसको खाली रहने दें और एंटर करके आगे बढ़ जाएं और फिर एंटर करें, यानी कि यहाँ पर आ जाएं, एंटर करके नरेशन वाले खाने में और फिर एंटर करें और इस एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक एंट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है 2/6/2022 यानी कि 2 जून 2022 को इकराम से 3000 रुपये का माल ख़रीदा। यहाँ भी दोस्तों इस चीज़ की कोई तफसील नहीं है कि हमने क्या माल ख़रीदा, उसकी मिकदार और क्वांटिटी क्या थी, बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकराम से 3000 रुपये का माल ख़रीदा। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता बनेगा ख़रीदारी यानी कि परचेज का, चूँकि हमने ख़रीदारी की है, और एक खाता बनेगा यहाँ पर इकराम का, यानी कि दोस्तों चूँकि हमने यहाँ पर उधार ख़रीदारी की है तो इसलिए यहाँ पर कैश का खाता ना बन करके इकराम का खाता बनेगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इकराम से 3000 रुपये का माल ख़रीदा, लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ नहीं है कि इकराम से नकद माल ख़रीदा या उधार। जब ऐसी सूरत हो और वहाँ पर नाम लिखा हुआ हो जिससे हमने माल ख़रीदा है तो दोस्तों जान लेना चाहिए कि वो लेन देन उधार में हुआ है, क्योंकि अगर लेन देन नकद में होता तो फिर उस आदमी का नाम लिखने की ज़रूरत बिल्कुल ना होती। तो इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा इकराम का। आइए अब हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है जैसे कि आपने पहले जाना, और इकराम पर्सनल अकाउंट है। आइए दोस्तों अब हम इनके नियम देख लेते हैं। परचेज अकाउंट का नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो। तो दोस्तों हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि देने वाले इंसान या कंपनी को क्रेडिट करो, क्योंकि दोस्तों इकराम हमको माल दे रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर इकराम को कायदे के मुताबिक क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से दबाएंगे F2। यहाँ पर हम वो डेट लिखेंगे जिसमें लेन देन हुआ है, यानी कि 2/6/2022। इसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि बिल का नंबर, मिसाल के तौर पर 113। और इसके बाद हम एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं डेट वाले खाने में। यहाँ पर हम वो डेट लिखेंगे कि जो बिल पर लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर 2 जून 2022 यहाँ पहले से है। हम फिर एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR होगा इकराम, यानी कि जिसने हमको माल दिया है। यहाँ पर इकराम का लेजर पहले ही बना हुआ है, हम यहाँ पर इकराम को ले लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सेंडरी क्रेडिटर है जैसे कि आप जानते हैं, और इसका लेजर बनाते वक्त भी हमने सेंडरी क्रेडिटर किया था। यहाँ पर हम एंटर करके इसकी डिटेल फिल कर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं और फिर एंटर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकराम हमसे 2000 रुपये मांग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 CR, यानी कि इकराम हमसे 2000 रुपये मांग रहा है, उसके हम पर 2000 रुपये बनते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 3000 रुपये। इसके बाद हम एंटर करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने एंटर किया अब यहाँ पर 2000 की जगह 5000 हो चुका है, क्योंकि 2000 उसने हमको पहले दिए थे और 3000 रुपये का भी माल दिया है, तो यहाँ पर ये 5000 हो चुके हैं। अब हम DR वाले खाने में करेंगे परचेज अकाउंट। दोस्तों परचेज अकाउंट का लेजर हमने पहले ही बना लिया था, इसलिए यहाँ पर अब दोबारा लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से ले लेते हैं परचेज अकाउंट को। इसके बाद दोस्तों आपके सामने वही विंडो आ जाती है, आप इसको छोड़ दें और एंटर करके आगे बढ़ें। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर फिल करेंगे डेबिट वाले खाने में 3000 रुपये, जो कि पहले ही आ जाता है। इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके फिर इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों ये हुई हमारी दूसरी एंट्री। अब हम देखते हैं इससे बाद का ट्रांजैक्शन। यहाँ पर अगला ट्रांजैक्शन है 2/12/2022 को इरफान से 1000 रुपये का उधार माल ख़रीदा।
आइए देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खाता बनेगा परचेज़ का, चूँकि हमने माल ख़रीदा है इसीलिए यहाँ पर एक खाता बना परचेज़ अकाउंट, और एक खाता बनेगा यहाँ पर इरफान का, क्योंकि दोस्तों हमने उधार में माल ख़रीदा है और उधार की सूरत में हम उस आदमी का नाम लिखते हैं कि जिससे हमने उधार माल ख़रीदा है, इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा इरफान अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंट यानी खातों की किस्मों में से या दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों परचेज अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट है और इरफान पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों परचेज अकाउंट यानी कि नॉमिनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो, तो इसलिए हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि देने वाले इंसान और कंपनी को क्रेडिट करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इरफान हमें उधार में माल दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इरफान को क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2। हम यहाँ पर लिखते हैं 2 फिर डैश फिर 12 फिर डैश फिर 2022। इसके बाद हम एंटर करते हैं और फिर एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर वाले खाने में। यहाँ पर हम लिखेंगे बिल का नंबर, मिसाल के तौर पर 114, और फिर एंटर करके यहाँ पर हम वो तारीख लिखेंगे कि जो बिल पर लिखी हुई है, और फिर एंटर करेंगे। एंटर करके हम यहाँ पर CR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर CR होगा इरफान अकाउंट, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दाएं जानिब के लिस्ट ऑफ लेजर में इरफान का लेजर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इरफान हमारे लिए अभी नया आदमी है मिसाल के तौर पर, इसलिए हमें यहाँ पर उसका लेजर बनाना होगा। हम यहाँ पर CR वाले खाने में रहते हैं, कीबोर्ड से दबाएंगे Alt C, तो यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे इरफान का नेम, क्योंकि हमने इरफान से माल ख़रीदा है, और इसके बाद हम एंटर करके अंडर वाले खाने यानी कि ग्रुप वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इसका ग्रुप लेंगे सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे उधार माल ख़रीद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले लिया है सैलरी क्रेडिटर, और इसके बाद एंटर करके हम यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। यहाँ पर हम कर देंगे यस और फिर एंटर करेंगे, और दोस्तों हम यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह फिल करेंगे और एंटर करके इस लेजर को सेव कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर ये सप्लायर डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर इसका आप एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं, और फिर एंटर करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट वाले खाने में 1000 रुपये, चूँकि हमने 1000 रुपये का माल ख़रीदा है, और फिर एंटर करेंगे। हम DR वाले खाने में आ जाते हैं, और DR यानी कि डेबिट होगा यहाँ पर परचेस अकाउंट, तो हम इसको ले लेते हैं और फिर एंटर करके यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, और फिर हम दोबारा एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।